ग्रोसरी हम कहीं अलग लेने जाते थे, किराने का सामान हम कहीं और लेने जाते थे, बट someone has identified the need कि people are not having that much time कि वो अलग-अलग जगह चीजें लेने जा सके. Then what happened? At a particular place, at a certain place, they have provided in a single roof, they have provided so many things. Single roof में आपको वहीं सब्जी भी मिल जा रही है, वहीं grocery भी मिल रही है, वहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं, and so many things are available for you. This is what they have done. They have identified the need of the customers. A part of that, they have to create the wealth. Then they have created the wealth as per that. Then there are so many kind of motivations are also there behind the behind being a entrepreneur. Motivation कि यार थक गया हूँ मैं नौकरी करते करते, अब तो मुझे कुछ अपना ही करना है. This is also motivation because I want to do something. दूसरों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं अपने लिए कुछ करूँ. So I could do जितना मैं दूसरे के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए करता था, आज कहीं और होता. So many people used to say like this, right? So what? This is also kind of motivation. This is also kind of motivation. Pure entrepreneur. I have learned something. For example, I'm a graduate in engineering. After being graduate in engineering, I've done MBA. Now I'd like to be in a business, a production business of auto parts. So वहाँ पे what that would be considered as a pure entrepreneur, where he or she is using his own skills, whatever skills are there, he is using his or her own skills to the same thing. Spontaneous entrepreneur. इतना सारा देखा कि ये सारी चीजें चल रही हैं, मैंने अपने तुरंत वो पीपीटी किट बनाना शुरू कर दिया, मास्क बना के बेचने लगे, है ना, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करने लगे. स्पॉन्टेनियस, ऑल ऑफ सडन. स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, ऑल ऑफ सडन हम बन गए. सो ऑल ऑफ सडन या अचानक से एंटरप्रेन्योर बनना मींस दैट इज नोन एज कि आप जस्ट सीकिंग द अपॉर्चुनिटीज, एट द सेम टाइम वी हैव सीक द अपॉर्चुनिटीज एंड वी हैव बिकम द एंटरप्रेन्योर. Then few are the growth entrepreneur. My family business is there and I'm going towards, मैं उसी को deal कर रही हूँ, so that is growth entrepreneur. They are known as growth entrepreneur. See, whenever like first generation entrepreneur, I am the person who is establishing the business. The first generation entrepreneur I could call. Family business, so that would be considered as the classical entrepreneur or the growth entrepreneur जिसको आप बोलते हैं. Now there could also be so many motivation behind your this, as I told you कि there would be so many motivations. So one of the motivation or attitude अगर हम बात करें कि what should be the attitude of the person or the determination. So see, whenever you are going for anything, you have to start from the scratch. Anything means if business I'm talking about or whatever, hard work is also required at that particular place. Then we have to identify the factors of that particular place. Factors means what kind of environment is there, experience and education are. So these three things would also be an added advantage for us, could also be an added advantage in future for us, could also become an added advantage. Then skills में अगर आप बहुत सारी, मैं अगर बात करती हूँ कि skills, entrepreneur skills की हम बात करें तो decision making is one of the very most important aspect in that. Why I'm saying decision making? Because if you have identified the customer's need, fine. After identifying the customer's need, now you have to, decide how you are going to convert those needs in or implement those ideas into into implementation part. When you are going to convert those things into an implementation part, तो किस तरीके की चीजें आएंगी और उन problems को आप कैसे identify करके उनको sort out करोगे. So that at that particular place, decision making will also play the important role. Whereas real time strategy would also be one of the there. And most important thing will be there, teamwork. At any point of time, teamwork plays an important role. Why I'm saying teamwork plays an important role? क्योंकि teamwork में जब भी आप बात करते हो तो teamwork में if you have good team, success की जो probability होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Fine. पर अगर सक्सेस आपकी टीम अच्छी नहीं है और टीम में 2 या 4 लोग काम अच्छे करने वाले नहीं है, देन इट मे बी पॉसिबल कि जो सक्सेस आपको 4 महीने में या 6 महीने में मिलने वाली है, लोगों का हार्ड, क्योंकि टीम वर्क अच्छा नहीं होगा तो एवरीवन विल इज नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू गिव देयर 100%, है ना, दे विल नॉट बी दैट मच कोहेसिवली वर्क नहीं करेंगे, वो लोग उतना कंपैटिबली काम नहीं करेंगे. सो दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर. Now, sir, talk about skills. There are 8 P's of entrepreneurs are also there. I don't know whether you have heard about or not.
but let me talk about. The one is passion, another one is perseverance, potential, then persistence, then permanent change, then proactiveness, then people and perception. So first, initially, we'll start working with passion. What is passion? If I'll talk about passion, कि passion होना चाहिए बंदे में. So how can you identify passion? See, passion जो रहता है, it is all about the energy, the motivation, and the hard work, which drives basically, you know, or drives basically means आपको, if my passion is teaching, fine. If I'm into that particular field, so I'll be very happy doing that particular job. तो जो आपका पैशन है और वही काम आप, अगर आपको डीजे बजाना पसंद है, आपको गाने पसंद है, तो आप डीजे में जाओ. तो what would happen? That is your passion. Being that passion, you would be able to do the best for that same thing. कि आपको पता है कि ये मेरा पैशन है, वो पैशन ही जब आपका काम बनता है, तो आपका जो रिजल्ट होता है, that is beyond something like that. तो आपका पैशन हमेशा वही होना चाहिए. पैशन के साथ आपको क्या करना चाहिए कि आप you will be able to do anything to achieve that particular point of time. वहां पे आप कुछ भी, कितना भी एक्सेस पे, कितने भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके वहां काम करना चाहते हो, आप उस काम को करने के लिए, लाइक ना, जिसे कहते हैं कि whatever you would like to do, you can do for that. इसलिए एक फ्रेज भी आपने शायद सुना होगा कि what I love, I believe that successful entrepreneurs knows what they make heart sing. जिसे कहते हैं ना कि जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही अगर काम करूं, तो काम को करने का, अचीव करने का पॉइंट ही अलग हो जाता है. Another point is perception. See, everyone's perception differs. आप जानते हैं perception मतलब जानते हैं विचार. Perception positively differs. I'll let you know about. Let you tell you a story of regarding perception. If I'll talk about perception, तो जो बाटा है, you must have heard about बाटा, सभी जानते हैं. बाटा ने, इनका की ट्रेड है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडियल एग्जांपल सेट किया था. अफ्रीका में एक भी शूज की शॉप्स नहीं हुआ करती थी, तो सभी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी सारी शूज कंपनीज गई वहां पे, और वहां जाके देख के, इंटीरियर्स में भी बाटा वहां पे अफ्रीका में गए, खोज देख के, एंड दे सर्च देयर दैट पीपल आर नॉट वेयरिंग शूज, एंड दे केम बैक विद द सेम. Bata people, they went to Africa, and then what they find out कि सब लोगों ने सब जगह देखा कि कहीं पे भी कोई शूज नहीं पहनता है, एंड दे केम अप वहां पे, ये आए वहां से, टीम आई वहां से वापस, बड़े दे वर टू मच एंथुसियास्टिक, एंड दे सेड कि people in they don't have shoes, anyone is not wearing shoes. We have great opportunity, and we can establish our manufacturing units there, and we can earn so many profits, so like lots of profits from there. वही दूसरे लोग जो करके आए थे रिसर्च, उन्होंने कहा वहां पे स्कोप नहीं है, लोग वहां जूते ही नहीं पहनते. परसेप्शन, डिफरेंस ऑफ द परसेप्शन. एंड नाउ जो डिफरेंस बाटा का परसेप्शन का आया, उसकी वजह से द रीजन बिहाइंड कि अफ्रीका के इंटीरियर्स तक में बाटा स्टैब्लिश है आज के टाइम. इंटीरियर जो रूरल बैकग्राउंड है, रूरल एरियाज है, वहां पे भी अभी भी बाटा है उनके. दैट इज द डिफरेंस ऑफ द परसेप्शन. कि आप, they have identified that the perception of those people, they were not able to see the opportunities over there, but the people of Bata, they thought that कि नहीं, यहाँ तो because people are not wearing shoes, that means there are so many opportunities, so we can establish our units here. So with the help of that, we'll be able to be the like be the people जो सबसे ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस यहाँ से अर्न कर सकते हैं. Secondly, इसके बाद आता है potential. If I'm talking about potential, that means one should have so much potential to earn the things. Potential, if I'll talk about greater uses, we know that कि हम जितना अपना माइंड का यूज करते हैं, वो बहुत ही कम परसेंट माइंड का यूज करते हैं, whereas बहुत ज्यादा दिमाग हमारे पास होता है, लेकिन हम उसका यूज बहुत कम कर पाते हैं. Same way, I should let you know the story of Ratan Tata. You must have heard, शायद आप लोगों में से कुछ ने सुनी भी होगी कि रतन टाटा जो है, he was 1998 में वो अपनी ये इंडिका लेके आए थे, उन्होंने लॉन्च करी थी कार, इंडिका कार. What happened, that car was not that much successful in the market, that much, and they were having so much losses in the market. So in result of that, what their board of directors have yet advised them कि अपन एक काम करते हैं, हम अपनी बाटा कंपनी को हम अपनी
फोर्ड इसको बेच देते हैं और अपने इंडिका कार्स के जो जोन है हम इसको बेच देते हैं, तो बेचने से क्या होगा, हमको प्रॉफिट, हम कुछ अमाउंट ले लेंगे, वैसे भी हम यहाँ पे लॉसेस में जा रहे हैं, वी आर नॉट इन अ गुड कंडीशन. सो मिस्टर रतन टाटा, they went with their team, they went to Detroit to the Mr. Bill Ford, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, बिल फोर्ड के पास गए. वहां जाके उन्होंने उनके सामने सारा प्रपोजल रखा, सारी चीजें रखी. तो मिस्टर बिल फोर्ड सेड दैट कि आपकी कंपनी तो बहुत नुकसान में चल रही है, बहुत लॉसेस में चल रही है, और मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं आपकी कंपनी को खरीद रहा हूँ. जो उनका बिहेवियर था, उस बिहेवियर को देख के उनको बहुत बुरा लगा, एंड ही सेड कि नहीं, अब हम आपका एहसान नहीं लेना चाहता और हम आपको अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे. मिस्टर रतन टाटा केम बैक विद दैट. अब वो उन्होंने उस चीज को उन्होंने मोटिवेशन की तरह लिया जो उनके साथ मिसबिहेव हुआ वहां पे, उनके साथ या उनकी कंपनी के लोगों के साथ वहां पे मिसबिहेव हुआ. ही केम बैक फ्रॉम देयर एंड देन ही सेड दैट कि वी शुड डू सम इनोवेशंस, और हम इनोवेशंस करेंगे अपनी इस कंपनी, इस कार के उसमें. एंड देन आफ्टर इनोवेशन दे केम अप विद द कार, बिकॉज एट दैट टाइम क्या था, 1998 में बहुत ज्यादा मारुति सुजुकी वाज द लीडिंग कार कंपनी. Later on they have done innovations, creativity उन्होंने डाला, और later on they came up with the new segment of cars. Same Indica में उन्होंने नए innovations लेके आए और उन्होंने इसको introduce किया market में. Same with the car was too much successful in the market. Later on what happened, Mr. Bill Ford, if we'll talk about him, तो 2008 के recession के बाद उनकी जो कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई, और उनकी ये हालत हो गई कि उनको बेचना एक पर्टिकुलर. So you must have heard about Jaguar और Range Rover, है ना. उन्होंने अपनी इस लग्जरी कार के सेगमेंट को बेचने का वो किया. Mr. Ratan Tata was the first person who came up कि I'd like to buy your these two segments cars. उन्होंने उनके दोनों ब्रांड्स को लेना चाहा. तो मिस्टर बिल फोर्ड ही केम बॉम्बे, उनके जो हेड ऑफिस में वहां पे आए, उन्होंने उनके सारे प्रपोजल सुने. एंड दैट गाय जिसने ये कहा था एक टाइम पे कि आप कंपनी खरीद के हम एहसान कर रहे हैं, दैट गाय सेड दैट कि आप हमारी कंपनी खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं. एंड देन ही सेड, मिस्टर रतन टाटा सेड, no, mention not, it's quite okay. So it's all about how you take the things positively and then how you used to deliver it. उन्होंने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, पॉजिटिवली उसको मोटिवेशन की तरह लिया, एंड देन ही इम्प्लीमेंटेड इट. तो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर हमेशा चीजों को पॉजिटिवली, उस चीज को लेके उन्होंने पॉजिटिवली लिया, अपने उन्हीं लोगों से उसमें अच्छे से काम कराया, एंड लेटर ऑन दे बिकम द, अगेन ही हैज बिकम द वन ऑफ द बेस्ट. Thirdly, हम बात करते हैं people. When we used to talk about people, that means in our company so many people are there. बहुत सारे लोग होते हैं जो who used to work for you. So many. If we used to talk about each and everything are being done by so many people in the company. चाहे आप बात करें company का आपका एक particular unit है, तो that is being done by the company. For example, if I'm going to explore any city, so people used to play an important role, that I'd like to let you know. कि like if I'm going to some particular place, their ambience, सारी चीजें, पहाड़, नदी, everything is quite okay, but the energy, the culture, the people, the attitude, the hospitality, each and everything also plays an important role. We used to say, यार वहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ वो जगह तो बहुत अच्छी है पर लोग बहुत खराब, but people are not that much friendly. We used to talk like this. ना, this is all about people used to play an important role. क्योंकि आपकी कंपनी के आप जहाँ जाओगे, जैसे I used to say my students कि आप, you are not so and so person, you are the representative of mine. Isn't it, कुलदीप? मैं हमेशा ये कहती थी ना कि आप नहीं, आप मेरे representative हैं. तो the same way कि आप नहीं, आप मेरे representative हैं. तो it's all about people कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप क्या हो. So that is all about. Then persistent learning is also, that is the fifth one trait that should be there. जो fifth P है persistent learning, gradual learning वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छी learning रखोगे, then only it be possible for you to grow in your life. So the most important thing is that कि आपको from anywhere, everywhere and from anyone, you should try to learn. अगर आपको सीखने को बच्चे से भी मिल रहा है, try to learn from them as well, because learning is an ongoing process. ये कभी खत्म नहीं होता. Then permanent change. Everyone wants changes, but permanent change, for example, if we want to change, it's not possible for me to change you entirely, right? But what can I do? I can make slight changes in
बिकॉज अगर मैं आपको पूरा पूरा चेंज करना चाहूंगी, आप में रेजिस्टेंस टू चेंज आएगा। रेजिस्टेंस टू चेंज मीन आपके घर वाले कहेंगे आपको सुबह 4 बजे सो के उठना है, आप बोलोगे अरे हम नहीं उठेंगे 4 बजे, राइट? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू चेंज। वहीं के वहीं आपने, वहीं पे आपने, वो बोलेंगे 7 बजे, बोलोगे ठीक है, ओके फाइन, क्वाइट एक्सेप्टेबल। तो दिस इज ऑल अबाउट यू नो बोथ द पार्टीज शुड वर्क टुगेदर। तो जब हम टुगेदरनेस के साथ काम करना चाहते हैं, परमानेंट जब चेंजेस की आप बात करो तो परसीव आपने जो चेंजेस करे, जो फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक टू ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें तो ट्रेन करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेन दोस पीपल, योर एम्प्लॉइज, है ना, योर द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, योर टीममेट्स, समटाइम्स यू हैव टू गिव देम मोटिवेशन। So there are so many ways how it be possible for them, for us to make them change, है ना? Then next आता है आपका इसके बाद, that is all about your perseverance. Perseverance की अगर हम बात करें तो it is all about how much hard work. जैसे दृढ़ता बोलते हैं ना, दृढ़ता, it is known as perseverance. दृढ़ता से आपको काम करना होगा। जैसे सारस जो होता है ना, सारस जब उसको वो चाहिए होता है फिश, तो वो एक टुक लगा, एक टांग पे खड़ा रहता है कि जब वो वहां पे फिश आएगी, वो पोस्चर भी चेंज नहीं करता। नेवर यूज्ड टू चेंज द पोस्चर। सेम पोस्चर में जब तक उसको एक फिश नहीं मिल जाती, वो उस दृढ़ता के साथ उस चीज में लगा रहता है। इन अ सेम वे एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव दोस काइंड ऑफ स्किल्स दैट ही शुड बी वर्क इन द सेम पेस, इन द सेम स्पेस, है ना? सो दैट इज, एंड प्रोएक्टिवनेस इज द लास्ट ट्रेट, कि जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होगे, क्या चीजें होने वाली हैं उसके लिए आप पहले से ही सी, everyone should be able to see the environment के आसपास इर्द गिर्द क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए आपको proactively you should behave, you should learn, और उसके साथ आपको काम करना चाहिए। So these all were the techniques of or 5 and 8 passions, जो मैंने 8 P's आपको बताए। आई थिंक इससे ज्यादा मैं कुलदीप बोलूंगी तो बहुत सारा, पर टाइम इतना होगा नहीं। बाकी स्टूडेंट्स कुछ 4 minutes are left, ma'am. Only 4 minutes. Yes, that's it, मैं बोल रही हूँ कि आपकी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हो तो वो बच्चे पूछ सकते हैं। बच्चे तो पहले पूछ लेंगे, मुझे कुछ कहना है आज। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। समथिंग मैम। प्लीज प्लीज। या मैम, एक्चुअली मैं दैट व्हीवर आई एम टुडे, एक छोटी छोटी सी चीजें होती है ना मैम, जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं कि मेरे को, मुझे लाइफ में कुछ करना है तो यार मैं गिव अप कर जाऊंगा अगर मुझे टाइम पे वो चीजें समझ में ना आए। तो वो टाइम जो था ना मैम, जैसे बोलते हैं ना लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो वो टर्निंग पॉइंट, हाँ याद होगा आपको, टर्निंग पॉइंट पे जब मैं लास्ट एमबीए में था मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आफ्टर एमबीए क्या करूँ, एमबीए करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो टर्निंग पॉइंट पे जो आपने मेरी हेल्प की थी ना मैम, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप सी, आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि हम लोग एक वो होते हैं, निमित्त मात्र होते हैं, बट आप लोग, आपकी अपनी मेहनत है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, बिकॉज यू हैव डन हार्ड, नो डाउट इन दैट, यू हैव डन हार्ड, और दैट्स व्हाई यू हैव अचीव्ड, एंड मे गॉड कि आप बहुत कुछ अचीव करें लाइफ पे, बहुत ज्यादा। या थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप ये वेबिनार अटेंड किया। मैम वही एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हमने ऑनलाइन, जिसमें यूजीपीटी एमबीए वाले स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं उनको गोल को अचीव करने के लिए, कि फ्यूचर में वो अपने गोल को कैसे अचीव करें, और उनका माइंडसेट कर रहे हैं कि यार आप जो करने जा रहे हो वो सही है, आप करो, होगा। इस टाइप से हमने कुछ प्लान आउट किए हुए हैं मैम, ऐसे कुछ फैकल्टीज को हमने हायर किए हुए हैं, और पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पे हम कंपनीज को भी इनवाइट करते हैं, कुछ कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट करती है मैम, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एचआर मैनेजमेंट में कुछ कंपनीज हैं, और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है बच्चों को, घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ उनकी इनकम होती रहे, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम। तो इसी में मैम चल रहा है। That's good. गाइस 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट में अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज मैम से पूछ लीजिए। Sir, I want to ask a question. मैम, एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमें एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो हम अमाउंट लाएं वो कहाँ से लाएं और कैसे करें? See, if you will go to the banks with your plans, तो जो initial entrepreneurs होते हैं ना, उनको सरकार बहुत promote भी करती है, तो government is having their own plans, आप उन चीजों के साथ जा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, बस अपना प्लान, आपका जो प्लान है वो that should be approved by the banks, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, आपका जो प्लानिंग है उनको लगेगा कि हाँ इसमें it could work, ऐसी वाली चीज, it could work,
that plan could work, implementation part is there. So so many places, so many banks are there who used to provide loans for you guys. तो New इस तरीके business. के entrepreneurs के लिए प्रोवाइड करते हैं. इनफैक्ट अभी आप देखिए जो बहुत सारे MSMEs को कितना सारा प्रोवाइड करा, एंटरप्रेन्योर्स को भी अभी सरकार ने जो हमारा नया वो आया हुआ है उसमें बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ जी. और मैम एक इंक्वायरी है मैम. जी, टाटा बच्चे. नैनो जब टाटा नैनो लॉन्च किया था तो उनका प्रोडक्शन का कैपेसिटी था 250 lakhs और हाँ जी. लास्टली उनका राहुल एक्चुअल में टाइम इशू है. मैं ये आपके जो क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा मैम की साइड से. डोंट वरी, मैम से पूछ कर ही दूंगा, मैं अपने खुद से नहीं दूंगा. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द मैम अटेंड वेबिनार एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ठीक है, आगे भी मैम आती रहेंगी, आपको सपोर्ट करती रहेंगी हम हैं. थैंक यू सो मच मैम. जब आप Thank you, ma'am. I'm always there for you. I told you, always there for you. Yeah. Okay ma'am. Thank you so much, Purvi. Yeah. Okay. No need to thanks ma'am. It's my pleasure. Thank you so much, ma'am Thank and you. sir. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so